Ladies and gentlemen, recitation from the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين. صدق الله العظيم. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। इरशाद बारी ताला है, उन काफरों से जंग करो ताकि अल्लाह तुम्हारे हाथों से उन्हें सज़ा दिलवाए और उन्हें रुसवा करे, उनके ख़िलाफ़ तुम्हारी मदद करे और मोमिनों के दिल ठंडे करे। वमा अलैना इल्लल बलाग।
Ladies and gentlemen, National Anthem of Islamic Republic of Pakistan. Ladies and gentlemen, to commemorate the resilience of Pakistan Air Force in Operation Swift Retort and to acknowledge the bravery of PF's gallant air warriors, two symbolic formations will present a flypast in front of you. If you throw your gaze on the horizon in front of you, you will shortly pick up the first five-ship formation comprising of all fighter platforms, signifying the spirit of Swift Retort and the enduring resolve of PF. It is being led by Wing Commander Bozar, Officer Commanding No. 29 Aggressor Squadron. On his left wing are Wing Commander Imran and Wing Commander Ibrahim, while on his right wing are Squadron Leader Salman and Squadron Leader Musharraf. Following closely behind will be the three-ship of Pride of Pakistan, the JF-17 Thunders. The Black Panthers of No. 16 Squadron will be led by Wing Commander Sarmad, Flight Commander Operations No. 16 Squadron, while on his wings will be Squadron Leader Basim and Squadron Leader Hamad. Ladies and gentlemen, rising from the backdrop of the horizon, here is the Black Panther formation about to execute the linear bomb burst. Ladies and gentlemen, be it day or night, we will remain ever vigilant and ready to defend the aerial frontiers of our motherland and give a befitting response if the enemy ever dares to challenge us. Now, I request Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal Mujahid Anwar Khan, Nishan-e-Imtiaz Military, to kindly say a few words. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable
former air chiefs, respected principal staff officers, esteemed PF veterans, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is my proud privilege and an honor to speak on the second anniversary of Operation Swift Retort. No doubt, 27th February is of a great significance in the history of Pakistan Air Force, as indeed our country. On this historic day, PF once again upheld its glorious legacy and deterred the aggressor who gravely miscalculated and challenged our sovereignty. On the strength of our capability and resolve, PF responded in a manner that made our nation proud. Alhamdulillah, we proved equal to the Qaed's vision of being second to none and established our supremacy in the air. I appreciate all personnel of Pakistan Air Force for their professionalism, valor, commitment displayed during Operation Swift Retort. Ladies and gentlemen, Pakistan is a responsible and a peace-loving nation, and its armed forces are prepared to defend its territorial integrity at all costs. Our efforts for global and regional peace, particularly in Afghanistan, Middle East, and UN peacekeeping missions are being acknowledged by the international community. One such manifestation of peace was witnessed by the world through unconditional return of the captured Indian pilot by the government of Pakistan. However, let me make it very clear that our desire for peace should not be misunderstood. In case of any misadventure, our response would be swift, resolute, and unwavering. I am glad that in the wake of historic Operation Swift Retort, PF remained proactive for maintaining peace and deterring aggression despite the challenges of COVID-19 pandemic. PF resolve and determination during the pandemic was remarkable. Alhamdulillah, our well-deliberated strategy, its successful implementation, and teamwork yielded dividends. While being committed to recollect, reconnect, recharge, and thinking to win, PF maintained highest level of operational preparedness besides ensuring safety of its personnel, which is commendable. Dear PF personnel, you must take pride in the sacred responsibility of national defense. We need to keep our assets ready and available all the times. Remember, Pakistan is confronted with numerous challenges which demand our capabilities for timely response. We must remain on guard to defend ourselves on ground and in air. PF is continuously endeavoring to augment our potential in all spectrum operations and pursuing modernization through indigenous efforts. We pledge to protect our sacred homeland and defend the hard-earned independence with our lives. On this occasion, let me reiterate that we stand by our Kashmiri brethren in their just struggle for self-determination. It is time to bring an end to the atrocities and longest lockdown of more than 1.5 years. May Allah Almighty guide our endeavors to be the enduring guardians of Pakistan free blue skies. Pakistan Air Force, Zindabad, Pakistan, Bindabad.
Ladies and gentlemen, now the national standard and parade will march out. All are requested to rise when it marches out. All those in uniform are to salute. Chief of the Air Staff, Principal Staff Officers, ladies and gentlemen, today reminds us of our resounding victory in Operation Swift Retort. It was the day that PAF not only lived up to its legacy, but also made its mark through professional excellence and valor. Now, we present a montage about prompt, measured, and surprising response made by our heroes that busted the aggressors' arrogance.
Make no mistake, PF when responds to irresponsible act, we may not always exercise restraint. भारत की एयरफोर्स जो है वो पाकिस्तान से तकरीबन 3 गुना ज्यादा बड़ी है। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल मुजाहिद की बातें सुन रहा था और मैं उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, ऐसे लग रहा था ये उस एयरफोर्स के कमांडर हैं जो दूसरी एयरफोर्स से 3 गुना बड़ी हो। फरवरी 2019 को पुलवामा में हुए खुदकुश हमले में भारतीय सीआरपीएफ के 40 जवान मारे गए। धमाके के फौरन बाद ही हिंदुस्तानी मीडिया ने एक नफरत अंगेज बयानिया अपनाया, जिसमें बिना कुछ सोचे समझे पाकिस्तान को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा दिया गया। नाम नेहाद वतन परस्ती की आड़ में सोची समझी साजिश के तहत एक शिद्दत पसंदाना सोच भारतीय अवाम में फैलाई गई, जिसके पेश नजर हिंदुस्तान का अगला कदम था पाकिस्तान से सिर्फ बदला। हिंदुस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने अपनी सहाफती इक़्तिदार को नजरअंदाज करते हुए एक ऐसा प्रोपेगेंडा शुरू किया जिसने 2 जौहरी रियासतों को न्यूक्लियर जंग के दहाने पर ला खड़ा किया। इस तमाम इल्जाम तराशी के बावजूद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार रियासत होने का सबूत दिया और भारत को इस मामले में मुकम्मल तहकीकात की पेशकश की। मैं आज हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ऑफर कर रहा हूं, किसी किस्म की आप तहकीकात करवाना चाहते हैं इस इंसिडेंट में कि कोई पाकिस्तानी इसमें मुलव्वस था, हम तैयार हैं। अगर आपके पास कोई एक्शनेबल इंटेलिजेंस है कि पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, वो हमें दे, मैं आपको गारंटी करता हूं कि हम एक्शन लेंगे। लेकिन रवायती बोझ और इक़्तिदार की हवस से भरपूर मूडी सोच के पेश नजर भारतीय हुकूमत पाकिस्तान पर चढ़ाई का मंसूबा बनाने लगी। 26 फरवरी 2019 वो तारीख है जब दुश्मन के जहाजों ने रात की तारीकी का सहारा लेते हुए पाकिस्तानी फजाई सरहदों की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की, मगर दुश्मन को मालूम न था कि पाक फजाइया के हवाबाज हर घड़ी तैयार हैं और अपनी फजाई सरहदों की निगरानी करना भी खूब जानते हैं। दुश्मन का इरादा भांपते हुए पाक फजाइया के शाहीन पाकिस्तान की जानिब पेशकदमी करती भारतीय जहाजों की फॉर्मेशन पे झपटे। दुश्मन के जहाजों ने जैसे ही रेडार वार्निंग सिस्टम का तबल बजाया तो भारतीय जेट्स बौखलाहट में अपने पेलोड गिराकर उल्टे पांव दुम दबाकर भागने पर मजबूर हो गए। वो जो पाकिस्तान पर हमला करने की नीयत से आए थे, सिर्फ 4 तरफ और एक कब्जे को निशाना बनाने के सिवा कुछ न कर सके। इस अटैक में जो वाहिद कैजुअलिटी है, अगर कोई मौत वाक़या हुई है तो वो इस कब्जे की मौत वाक़या हुई है। हिंदुस्तान की इस बुज़दिलाना जारहियत के पेश नज़र हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क की सालमियत को मद्देनजर रखते हुए अफवाज पाकिस्तान को अपने लाहे अमल के तहत भरपूर जवाब देने का हुक्म जारी किया। The response will come at the point and time of our choosing. अगले ही रोज 27 फरवरी 2019 की सुबह दिन के उजाले में पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन के 6 महफूज तरीन अस्करी ठिकानों को निशाने पर रखा, मगर मुल्की आला क़यादत के अहकामात की तामील करते हुए हमले से ऐन पहले अपने स्मार्ट वेपन्स का रुख गैर आबाद इलाके की तरफ मोड़कर दुश्मन को बावर कराया कि पाक फजाइया न सिर्फ अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानती है, बल्कि दुश्मन के हर ठिकाने पर गहरी निगाह भी रखती है। पाक फजाइया ने 32 घंटों में, सिर्फ 32 घंटों में बालाकोट में भारतीय नाकाम हमले का कामयाबी से जवाब दे दिया। पाक फजाइया के सरप्राइज ने भारतीय एयर डिफेंस में खलबली मचा दी और उन्होंने अपने लड़ाका तैयारों को पाक फजाइया के तैयारों पर जवाबी वार करने का हुक्म दिया।
मगर पाक फजाइया के हम वक्त तैयार शाहीन अपनी तरफ बढ़ते भारतीय तैयारों पर झपटे। अल्लाह ताला ने वो दिन विंग कमांडर नोमान अली खान और स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी के नाम कर रखा था, जिन्होंने MiG-21 और Su-30 को बेतरतीब नपी तुली जांच और फायरिंग पैरामीटर्स के ऐन मुताबिक निशाना बनाया। पहले Su-30 स्क्वाड्रन लीडर हसन सिद्दीकी के जहाज से निकलने वाले मिसाइल का निशाना बना, जिसका मलबा भारतीय हुदूद में गया। इस तैयारों को ढूंढते हुए हिंदुस्तानी Mi-17 हेलीकॉप्टर अपनी ही एयर डिफेंस की बदहवासी की बदौलत दागे गए इसराइली साख्ता स्पाइडर मिसाइल का निशाना बन गया, जिसमें इनके 6 फौजी अपने ही एयर डिफेंस की नाअहली की बदौलत जान से हाथ धो बैठे। इस वाक़े के बाद MiG-21 तैयारों की एक फॉर्मेशन विंग कमांडर अभिनंदन की क़यादत में हवा में बुलंद हुई। ये फॉर्मेशन फजा में बुलंद होने के बाद से ही बौखलाहट का शिकार रही और कुछ ही देर में बिखर गई। विंग कमांडर अभिनंदन इसी कश्मकश में पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल हो गया। भारतीय तैयारे को अपनी जानिब बढ़ता देखकर विंग कमांडर नोमान अली खान, जो पहले से ही इस ताक में थे, और चश्मे जदन में नोमान अली खान के तैयारे से निकलने वाले मिसाइल ने अभिनंदन के जहाज के परखचे उड़ा दिए। तबाहशुदा MiG-21 और इसमें से पैराशूट के जरिए छलांग लगाने वाले अभिनंदन पाकिस्तानी हुदूद में आन गिरे और चंद दिनों की मेहमान नवाजी के बाद हुकूमत पाकिस्तान ने अपनी आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए भारतीय पायलट को रिहा कर दिया। इस फजाई मार्के में पाक फजाइया के मुख्तलिफ स्क्वाड्रन्स के कई जहाजों ने हिस्सा लिया। इस मुख्तसर फजाई मार्के में पूरी दुनिया ने पाक फजाइया की पेशावराना महारत और फन्नी बरतरी का भरपूर मुजाहरा देखा और पाक फजाइया ने दुश्मन की सोच पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जो उसकी आने वाली नस्लें रहती दुनिया तक याद रखें। अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान के ऊपर कुछ किसी किस्म का हमला करेंगे, पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर एयर चीफ। मेक नो मिस्टेक, वी विल ऑलवेज सेफगार्ड पाकिस्तान, प्रेजेंटिंग टू यू आवर रिंग्स ऑफ फ्रीडम एंड द गार्डियंस ऑफ योर स्काई। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुश रंग फलक गुल रंग जमी सर सब्ज फजाए पाकिस्तान, अपना है चमन अपनी है लगन महके ये हवाए पाकिस्तान। हम मिलके चले परवाज करें तो ऊंचा जाए पाकिस्तान, रग रग में बहे दिल दिल में रहे सीनों में समाए पाकिस्तान। आवाज तेरी आवाज मेरी दिल से निकले दिल में उतरे, उनके सदाए पाकिस्तान, दिलों में है गूंजी सदाए पाकिस्तान, है ये सदाए पाकिस्तान, फज़ाओं में गूंजी सदाए पाकिस्तान। गाजी चले हवाओं के गाजी चले, हैरां फिजाएं तेरे गीत गाए सदा, शाहीन हुए वो रंग भरे सब ढंग हुए, तेरे नाम का डंका फलक फलक हर आन बजा, हर कान पड़ा, हर शहर में शोहरा, नगर नगर वो धूम मची हर जगह। आवाज तेरी आवाज मेरी
धरती से फलक तक परवाज़ करे बनके सदाए पाकिस्तान दिलों में है गूंजी सदाए पाकिस्तान है ये सदाए पाकिस्तान फज़ाओं में गूंजी सदाए पाकिस्तान Ladies and gentlemen, now the students of Fazaya Inter-College Islamabad will pay tribute to our heroes who have made untiring contributions to our motherland while defending its aerial frontiers. The first song to be presented today is Apni Jaan Nazar Karoon, Apni Wafa Pesh Karoon by Master Umar Riaz. अपनी जान नज़र करूं अपनी जान नज़र करूं अपनी वफा पेश करूं कौम के मर्द मुजाहिद तुझे क्या पेश करूं अपनी जान नज़र करूं अपनी जान नज़र करूं तूने दुश्मन को जला डाला है शोला बन के उभरा है गाम पे तू फतह का नारा बन के इस शुजाअत का तुझे क्या मसला पे What a beautiful rendition of the song. Ladies and gentlemen, our students deserve your applause. The song "Ae Nigare Watan Tu Salamat Rahe" will be presented by Master Muhammad Hassan.
किस काम आएगी ये जिंदगी, अपने खून से बढ़ाते रहेंगे सदा तेरे गुल रंग चेहरे की ताबिंदगी। जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, जब तुझे रोशनी की जरूरत पड़ी, अपनी महफिल के शम्सो कमर देंगे हम। सलामत रहे तू, सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तू सलामत रहे। सब्ज परचम तेरा चांद तारे, तेरी बज़ में निगारी के उन्मान हैं। तेरी गलियां, तेरे शहर, तेरे चमन, तेरे होठों की जुम्बिश पे कुर्बान है। जब भी तेरी नजर का इशारा मिला, जब भी तेरी नजर का इशारा मिला, तोहफ़े लफ्ज़ जान पेश कर देंगे हम। सलामत रहे तू, सलामत रहे ऐ निगारे वतन, तू सलामत रहे। मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम, मांग तेरी सितारों से भर देंगे हम। तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे, तू सलामत रहे। A beautiful and soulful tribute to our nation. It deserves indeed a lot of appreciation. The third song of the ceremony is the iconic song "Ae Rahe Haq Ke Shaheedon," rendered by Miss Manahil Fatima.
beautifully sung by our very talented Miss Manahil Fatima. The last song of today's ceremony is a group performance by Master Umar Riaz and his team. शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से मुजाहिदों जहां का सबात है, तुम ही से मुजाहिदों जहां का सबात है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, लहू जो है शहीद का वो कौम की ज़कात है। तुम ही से मुजाहिदों जहां का सबात है, तुम ही से मुजाहिदों जहां का सबात है। तुम्हारी मशले वफा परों में शश जिहाद है, तुम ही से मुजाहिदों जहां का सबात है, तुम ही से मुजाहिदों जहां का सबात है, तुम ही से मुजाहिदों